कोर कंटेंट ऑफ चैप्टर 1, कोर कंटेंट ऑफ चैप्टर 1 अब स्टार्ट होगा। व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड हाउ डू वी सॉल्व देम। अभी तक हमें क्या पता है? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब कंटेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। आपके हाथ में परफेक्टली क्लोज करना है या उसको अक्यूमुलेट होने देना है। क्लोज करोगे तो सब अलग अलग दिखेगा, वरना सब एक जैसा लगेगा एक टाइम के बाद। व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? Wants of human beings are unlimited. शुरुआत ही हमने यहीं से करी थी, unlimited human wants, but the means of satisfying these wants are scarce. It is impossible for an economy to produce everything for each individual because no economy possesses unlimited resources. It becomes necessary for every economy, therefore, to make a choice. Choice. Scarcity leads to the problem of choice regarding the efficient use of the available resources of the economy like land, labor, capital, etc. For example, the economy has to decide how much of the resources are to be used for the development of industries, क्योंकि resources limited है। कितने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे लगाएं, कितने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे लगाएं, कितना हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट करें, कितना एजुकेशन पे करें, कितना रोड्स पे करें, कितना डिफेंस पे करें, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, बट लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हाउ मच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर? द प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू द डिफरेंट यूजर्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। Thus, by economic problem, we mean the problem of choice or the problem of economical use, optimum use of the scarce resources. So, it is the problem of economizing the resources, optimum allocation of scarce resources. Economic problem is essentially the problem of choice. Confronted with the scarcity of resources in relation to our wants, and given the fact that resources have alternative uses, we have to make a choice regarding the allocation of resources to alternative uses with a view to maximizing economic gain at the individual level and maximizing social welfare at the level of economy as a whole. At an individual level, आप अपनी satisfaction भी maximum रखें, but not at the cost of economy. Economy as a whole भी prosper करे. Confronted with the scarcity of resources in relation to our wants, and given the fact that the resources have alternative uses, we have to make a choice regarding the allocation of resources to alternative uses with a view to maximizing economic gain at individual level and maximizing social welfare at the level of the economy as a whole. Thus, economic problem is essentially the problem of choice, optimum allocation of resources. So, economic problem is the problem of choice. So what is the economic problem? ये तो समझ आ गया, the problem of choice. Very important question. What causes the economic problem? What are the reasons of the economic problem, or why do economic problems arise? Number one, unlimited wants. आपकी wants जो है ना खत्म ही नहीं होती. Unlimited wants. Resources to satisfy these wants are limited, and the resources have alternative uses. Three reasons exactly पता होना चाहिए. Number one, unlimited wants. अगर वो आपकी wants unlimited ना होती तो problem of choice ना आती, क्योंकि वो फिर satisfy हो सकती थी. But unlimited है तो satisfy तो हो नहीं सकती. एक satisfy होगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी होगी, तीसरी आ जाएगी. Human wants are unlimited. Now the resources to satisfy these wants are limited. अगर resources limited ना होते तो भी problem of choice ना आती. Unlimited resources है, पैसा ही पैसा है, खर्च करो जितना करना है. क्या अंबानी को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती होगी?
रिलेटिवली कम आती होगी, हमसे तो कहीं ज्यादा कम आती होगी, बट रिलेटिवली कम आती होगी कि बेटा टेंशन नहीं, ये भी ले ले वो भी ले ले, बट इवेंचुअली अनलिमिटेड मनी तो उनके पास भी नहीं है। अगर प्लेन खरीदना है, अब हम साइकिल खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, प्लेन तो क्या वो जितने मर्जी प्लेन खरीद सकते हैं? नो। अब बात समझ आई? क्या वो स्पेसशिप ले सकते हैं जितनी मर्जी? नहीं ना। तो मतलब उनके फिर अनलिमिटेड फंड्स तो नहीं है, उनकी सारी वांट्स तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो नो वन there is no one who will not face the problem of choice. Everyone faces, सबकी डिग्री अलग होती है। What are the reasons? Unlimited wants, resources to satisfy these wants are limited. अगर resources unlimited होते तो क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती? नहीं आती। और the resources have alternative uses. आपके पास पैसे हैं, अब पैसे से आप कपड़े भी खरीद सकते हो, आप खाने का सामान भी ले सकते हो, आप कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हो। बट अगर रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस ना होते, अगर रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस ना होते तो क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती? नहीं आती। इस टेबल का क्या हो सकता है? या तो इस पे खड़े हो सकते हो या इस पे बैठ के पढ़ सकते हो। क्या इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं टेबल के? क्या है ऑल्टरनेटिव यूजेस? सर लोड़ी पे आग लगा सकते हैं, ठंड लगे तो जला दिया। ऑल्टरनेटिव यूजेस इसके हैं कि नहीं है? बोलो बेटा। ऐसा लग रहा है कि हैं। जैसे कि खाना, भूख लग रही है, हाँ हाँ, टेबल के ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? टेबल पे रख के बुक्स रख लो, फोन रख लो, देखो दो दो हो गए, और खाना रख लो, ठीक है ना? सपोर्ट ही तो है, उसका एक ही यूज है, टेबल का एक ही यूज है कि वो आपको सपोर्ट दे रहा है। अब उसके आप अपने हाथ रख लो या खाना रख लो या रख लो, तो ये कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं हो गए। सेम टेबल, इतने सारे काम, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं है। तो क्या मुझे इसमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी? ज्यादा नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम चॉइस आती ही कब है? जब आपके रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपका क्या है? टाइम है। अब यहाँ तो पढ़ लो या मस्ती कर लो। उस टाइम पे मस्ती तो नहीं कर पाओगे अगर पढ़ रहे हो तो, जिस टाइम मस्ती कर रहे हो तो पढ़ नहीं पाओगे। यू हैव टू मेक अ चॉइस, क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। जिस चीज के ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं होते वहां प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं आती। अगर अनलिमिटेड वांट्स नहीं होती तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं आती। अगर स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं आती। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती ही इन तीन रीजंस की वजह से है। What are the problems? What are the central problems of an economy? बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। What are the causes of central problem? वो एक अलग क्वेश्चन है। तो we are, as of now we are discussing the causes, reasons of central problem. Why do central problems arise? Number one, most important, unlimited wants. Human wants are unlimited. No man can satisfy all his wants fully. Wants of all members of the society cannot be fully satisfied at a given time. As a matter of fact, wants of the man have been increasing day by day. A few years back, there was hardly any demand for laptops. पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अर्ली 90s की अगर बात करें तो इतनी कोई डिमांड नहीं होती थी, इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। जब इंटरनेट ही नहीं है तो डिमांड कैसे होगी? बट टुडे ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड, और कोविड के बाद तो घर में दो दो तीन तीन, but today almost every household is keen to get one. With the passage of time, there is every likelihood of an enormous laptop. 30 साल पहले तो हर घर में टीवी भी नहीं होता था। yes or no? तो लैपटॉप तो बहुत, तो धीरे 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 रिसोर्सेज बढ़े तो वांट्स बढ़ती गई। ह्यूमन वांट्स आर, काश हमारे घर में टीवी हो, टीवी आ गई। काश हमारे घर में एलसीडी टीवी हो, फिर काश हमारे घर में एलईडी टीवी, काश हमारे घर में 3D टीवी हो। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। 3D भी आ गया ना, काश हर रूम में 3D टीवी हो, काश इसके साथ रिक्लाइनर भी हो। बात समझ आ रही? काश 2 रिक्लाइनर हो। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर, काश पेप्सी भी हो, पॉपकॉर्न भी हो।
जो जो होता रहेगा तो थॉट वहां जाएगा जो नहीं है, जो है वो तो दिखना ही बंद हो जाता है, तो मिल गया। जो नहीं है हमारी सारी थॉट्स वहीं रहती है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, उसमें आप कुछ कर भी नहीं पाओगे बाबा जी बनने के अलावा। But today, almost every household is keen to get one. With the passage of time, there is every likelihood of an enormous increase in the demand for computers, mobile phones, costly cars, etc. We can therefore safely say that every society at any given time, in every society, there are innumerable unsatisfied wants. Human wants are unlimited, and at any point of time, there are innumerable unsatisfied wants. Human wants are unlimited. Resources to satisfy these wants are limited. Limited or scarce. Scarcity, the essence of economics. It led to the problem of choice. So, what are the causes of problem of choice? Human wants are unlimited. Scarcity of resources. Most of the goods and services satisfying human wants are limited or scarce. ध्यान से देखेंगे बेटा, these goods are called scarce, limited because their demand is greater than supply. किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा है, scarcity मतलब शॉर्टेज है, scarcity मतलब सिंपल शॉर्टेज है। शॉर्टेज कब होगी? किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, उसकी सप्लाई कम है। No matter what the price is, in the words of McConnell, scarcity is a situation in which there is not enough of resources to meet all human wants. Causes of economic problem: number one, unlimited wants. Number two, the resources to satisfy these wants are limited. Limited or scarce resources, means or resources एक ही बात है। Or these resources have alternative uses. अगर alternative uses ना होते इनके तो problem of choice ना आते। अब इस लैपटॉप के alternative uses हैं, मैं इसको पढ़ाने के लिए भी यूज कर सकता हूँ, मैं इसको गेम्स के लिए भी यूज कर सकता हूँ। अगर इस पे मैं ज्यादा गेम्स खेलना शुरू कर दिया तो क्या ये फुली इफेक्टिव रहेगा पढ़ाने के लिए? अफेक्ट होगा कि नहीं? अगर आप फोन पे मोबाइल स्पेस है, क्या परफेक्ट एग्जांपल सर, बाय गॉड कल ही रात को मैं फोटोज डिलीट कर रही थी, वीडियोस डिलीट कर रही थी। एक तो आप ये इतनी सारी फाइल्स भेजते हो, सर गूगल क्लासरूम पे डाल दिया करो, पेरेंट्स भी परेशान है। तो लिमिटेड स्पेस है आपके फोन में, आपके फोन में क्या है? लिमिटेड स्पेस है, तो वो हो गए आपके रिसोर्सेज। अब उसमें फोटोज भी डालनी है, उसमें वीडियोज भी आने हैं, उसमें नोट्स भी आने हैं। क्या सब कुछ अनलिमिटेड आ सकता है? नहीं आ सकता। यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है। आपके लिए नोट्स ज्यादा जरूरी हैं या आपके लिए फोटोज, रील्स और वीडियो ज्यादा जरूरी है? तो वी हैव टू मेक अ चॉइस। फोन में सबको डिलीट करना पड़ता है डेटा, मुझे भी करना पड़ता है, बट मेरे फोन में ज्यादा आपको पढ़ाई का कंटेंट मिलेगा। अगेन प्रायोरिटी ना, कि मेरे आई हैव टू मेक अ चॉइस, तो आई मेड अ चॉइस कि जिसमें ये वाला कंटेंट ज्यादा होगा। बट वो चॉइस लेनी क्यों पड़ी? लिमिटेड स्पेस। तो यहाँ पे क्या था आपकी कंस्ट्रेंट? स्पेस, डेटा। ऑल्टरनेटिव यूजेस थे स्पेस के? थे। Another cause of economic problem is that limited resources have alternative uses. For instance, milk is a scarce commodity. It can be used for preparing cheese, ice cream, rasgulla, etc. या मिल्क के फॉर्म में डायरेक्टली पी लो। बहुत सारे रिसोर्स उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। Since resources are limited, all wants cannot be satisfied. अब इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के भी मल्टीपल यूजेस हैं। पढ़ाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, कूलिंग के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, हीटिंग के लिए भी, कुकिंग के लिए भी मल्टीपल यूजेस होते हैं। लेकिन अगर बिजली महंगी होती जा रही है, अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाए तो क्या होगा बेटा? एसी बंद कर दो, सबसे पहले यही होगा, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो सबसे काम की जगह यूज करो बेटा, गीजर बंद कर दो। बात समझ आ रही है? तो आप ये सब जो चीजें अवॉइड की जा सकती हैं वो अवॉइड होनी शुरू हो जाएंगी। बट लाइट तो जल्दी तो होता है ना कि ऑल्टरनेट, यू हैव टू मेक अ चॉइस व्हेन देयर इज शॉर्टेज। इन्वर्टर पे जब आप काम कर रहे होते हैं, लाइट चली गई, इन्वर्टर की लिमिटेड पे वो है पावर सप्लाई, तो क्या आप उसमें सारे लाइट पंखे चलाएंगे? तो फिर यू हैव टू मेक अ चॉइस कि किधर बैठना है, क्या बैठना है। तो जहां शॉर्टेज होगी, जहां जिस चीज की शॉर्टेज होगी, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी। It leads to problem of choice, which wants should be satisfied and which should not be.
Accordingly, the society has to decide which wants are to be satisfied first and which later. This is the problem of choice. क्या पढ़ा हमने? What are the causes? What are the causes of economic problem? Very, very important question. So, meaning of economic problem. What is an economic problem? Scarcity, problem of choice. What are the causes of economic problem?